मैंने एक सेकंड ये बताइए एक मिनट सर नहीं यार अच्छी लगी उसके बाद दोनों के कसे में काम में रोलिंग Lalaji, it's a big day today. Bala Saheb is fondly remembered not just in Mumbai, Maharashtra, but globally. And there is a beautiful musical tribute which you all are part of today. What would you like to say? I'm very happy to be here to be part of this musical tribute. As I said before, Bala Saheb, I had met him in the 90s, early 90s, 91, 92. There was a mayor's meet in the mayor's building. He had come and I was singing there. He requested me, he asked me to sing this particular ghazal, which is one of my debut ones, Kaise Sukun Paao. So I was surprised, I sang, and I was more surprised when he was sitting right in the front and he knew the lyrics, he was actually singing along with me. And he said, this is one of my, so I'm very happy to be here, and yes, he was a great personality, and I'm sure he's everyone in the world knows about him. Smita ji's done a wonderful job organizing this, and of course my wife, she's helped. The artists who have come today, just doing it out of sheer love, nothing else. Veena ji, would you like to join Lalaji and throw some light on this wonderful initiative that you've put up for Smita ji, yeah. So I'm honored, it's an honor for me to put this musical concert together with such a great personality who we all admire. He's contributed so much to the history of India, and I've admired him being an artist myself. I've admired him for the cartoon, he's been known as a cartoonist, an amazing person who's made a difference to many lives and touched many souls. So, and he loved music, he's my husband. And I'm very honored and proud to be part of this wonderful evening. Thank you to Smita ji. Veena ji, throw some light on the musical tribute which Roop ji has exclusively composed today, and there's a live performance. Let me that's my she asked Roop Kumar Rao, very talented singer and composer, I know for a long time, and he immediately had this song, special song written, and he composed it and sent it, and we are all going to sing it together today. So it's for the first time live. And I must say he's done an amazing, within I think 2-3 days he just composed this amazing composition. I'm grateful, thankful to him. And you'll hear it live now with all the artists singing. So yeah. Thank you. झूमर इवेंट्स हम तो ऑब्वियसली हर हफ्ते कुछ ना कुछ एक ट्रेलर लॉन्च होता है, फिल्म लॉन्च होता है, तो हम तो कई चीज़ों में जाते हैं, बट कुछ चीज़ें यहाँ से कनेक्टेड होती हैं, ये वो वाली चीज़ें। तो आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद स्मिता जी, और यहाँ पे जब पता चला कि ये हो रहा है बाला साहब के इस मेमोरी में, तो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। वी ऑल नो दिस इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स, एंड आई थिंक सो एक मज़ा तो आएगा ही पूरे प्रोग्राम का, जितने लोग दिग्गज लोग जो आए हुए हैं, बट अदर देन दैट इट्स दैट कनेक्शन जो हमारे लीडर साहब जो हमारे थे उनके साथ जो कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं उनकी यादों में उनका प्यार, ये सब अपने को दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू द हार्ट। मैं जैसे हमारे गाने होते हैं कि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, तो बस वही बात है कि ये बहुत अपने हैं, बहुत क्लोज है हमारे, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। एक सड़क फिल्म का एक गाना था जो रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, उसमें एक अंतरा था जो मुझे आज वो याद आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो था कि लोग हमें क्यों याद करते मरने के बाद। वो वाली जो बात है ना कि द मैन हैज़ डन सो मच फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, ही इज़ डन इमेंस, एंड वही चीज़ आज हमको, हमारी यूथ को, हमारी जनरेशन को, हमारी आने वाली जनरेशन को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि इतने दिग्गज लोगों ने क्या क्या किया है हमारे लिए, एंड दैट वन इज़ बाला साहब ठाकरे। एंड आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, एंड ऑल द बेस्ट। आई थिंक सो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया होगा, एंड इतने दिग्गज लोग आए हैं, इतने दिग्गज सिंगर्स आए हुए हैं, सो मैंने आज रात तो बुक कर लिया अपने आप को, जस्ट एन्जॉय द शो। Please come. Many congratulations for putting up such a wonderful show and keeping Bala Saheb's memory so much alive.
within us. आज का दिन बहुत खास है and you always make it special at the foundation. Tell us your thoughts जब आपने ये conceptualize किया, आपने सोचा एक ऐसा musical grand tribute होना चाहिए. पहली बात तो आपको सबको अयोध्या में राम आए हैं तो सबको बधाई देना चाहूँगी. जय सिया राम, जय श्री कृष्ण. साहब एक एहसास जो नाम ही हमने सोचा है और एहसास जो है जो हमारे दिल में है और हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा. क्योंकि साहब की मेमोरीज़ के लिए या किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा हमारे जहन में रहते हैं. बहुत ही छोटा सा प्रयास मैं कर रही हूँ क्योंकि उनके जन्मदिन की इतनी सारी मेमोरीज़ हमारे दिल में है. हमारे लिए वो एक त्यौहार था और आज 11 साल गुजर गए. साहब हमारे बीच में शरीर के रूप में नहीं है पर हमारे अंदर उनका एहसास है, इसलिए हमने ये नाम भी चुना. बात अगर उनके बारे में कहने की है तो वो बहुत ही सूरज को तिनका दिखाने जैसी बात होगी. साहब के बारे में सबको पता है और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम उनको भूलेंगे नहीं और ना ही हमारा देश उनको भूलेगा. आज जो भी पूरे देश में होने जा रहा है या हो रहा है, माननीय पंतप्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से मुझे पूरा यकीन है कि उनकी आत्मा को बहुत शांति मिली होगी. क्योंकि उनका एक स्वप्न था वहाँ मंदिर हो और काश में बहुत सारे उनके लोग थे और उन्होंने बहुत जिगर से बोला कि हाँ मेरे लोग थे. तो ये उनका एक स्वभाव था कि जो भी किया है वो छाती पर बोल देते थे. हमने बहुत कुछ सीखा है एज अ लीडर और उनके साथ अगर हमने वक्त बिताया है, उनके घर में हम रहे हैं तो हमारा वो सौभाग्य था कि हमने आज जो भी सीखा है, आपके सामने जो भी मैं खड़ी हूँ जिस भी व्यक्तित्व से, वो केवल और केवल उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ. आप फिल्म इंडस्ट्री से और म्यूज़िक से बहुत लगाव था उनका और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है उनके जीवन काल में. उसके लिए क्या करें? मैं तो कहूँगी कि वो राजनेता थे ही नहीं, पॉलिटिशियन थे ही नहीं. उनके अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो कि हमारे सबके अंदर होता है, पर हमने वो बहुत नज़दीक से देखा है. और रही बात अगर म्यूजिक की या किरदार की, एक्टिंग की, तो वो तो उनके खून में था. उनके पिताजी भी एक्टिंग करते थे और पॉलिटिक्स में आना ये उनका नसीब था. और अंदर के जो बाला साहब है वो एक कलाकार थे और कलाकार है क्योंकि वो कलाकार का हृदय जानते हैं, वो कलाकार की समस्या जानते हैं, वो उनके बारे में बहुत आत्मीयता से पूछते हैं और उनको मिलते थे. तो हमने वो बहुत नज़दीक से देखा और हमें इतना सौभाग्य था कि हमको उस इंडस्ट्री का एक पार्ट होने का मौका मिला और वो भी उनकी कृपा से हुआ. हमने हसीना मांझा की जब बनाई थी तभी उनको हमने अपना वो जिक्र किया कि हम बनाना चाहते हैं. तो बोलते ये फिल्म इंडस्ट्री आप हमारे तुम झेल पाओगी उसको, वो जो भी कहानियाँ होती हैं फिल्म इंडस्ट्री की. पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किया तभी मुझे पता चला कि ये बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है. ऐसा कुछ नहीं है जो कहाँ सुना होता है. हम तो तभी बहुत ही सिर्फ कहीं सुनाने बातें सुनते थे. पर खैर जब भी जो भी निर्णय हमने लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, उन्होंने कभी हमको रोका नहीं. और मुझे लगता है कि उन्होंने हर महिला को प्रोत्साहित किया है कि अगर वो कोई भी काम करना चाहती है और अपने पैरों पे खड़ी रहना चाहती है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि एक हाउसवाइफ तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप अपना घर संभालिए वो भी बहुत बड़ा कार्य है, पर अगर आप बाहर का काम सीखना चाहती हैं तो ज़रूर सीखिए, अपने घर का सहयोग लीजिए. और उतनी ताकत तो हमारे औरतों में होती है कि हम बाहर का और घर का काम दोनों बैलेंस तरीके से हम संभाल सकते हैं. तो उन्होंने हमेशा औरतों को प्रोत्साहित किया है और हमें भी प्रोत्साहित किया और शायद इसलिए हम यहाँ खड़े हैं. बाला साहब के साथ आप फॉर्चुनेट रहे कि आपने उनके साथ उनकी फैमिली में आपने तो
कोई एक ऐसा शायद कोई ऐसा मेमोरी जो आपकी उनके साथ रही हो जिससे बहुत बड़ा एक इम्प्रेशन कहते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए रहा हो? एक्चुअली मैं थोड़ी सी एक बच्चों के मामले में कोई भी चीज़ अगर उनको इजीली मिले, इस मामले में मैं फॉर नहीं हूँ। कोई भी चीज़ अगर कोई खिलौना या कुछ भी हो, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमको ये कहा गया था कि ये करो तो आपको ये मिलेगा। तो वो चीज़ हमने फॉलो करने की कोशिश की कि उनके हमारे बच्चों को भी स्पॉइल ना करें, क्योंकि जो भी नया खिलौना घर में आता था तो साहब पहले उनको बच्चों को मंगाते थे, और लिटरली पूरे जितने भी बच्चे हमारे घर में थे, मेरे बच्चे, मेरे बड़े देवर के, मेरे छोटे देवर के, तो सब लोगों को वो खुशबू आ जाती थी कि अभी नए खिलौने आ गए हैं। और फिर उनके यहाँ पूरा तादाद में सब लोग खड़े थे, जो पहला जाएगा उसकी पहली चॉइस। तो वो कहीं ना कहीं वो इतना सुंदर क्षण होता था। और हमेशा मैं उनको कहती कि उनको वैल्यू नहीं मिलेगी कि मैं वो क्यों। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इसके बाद आप मुझे टोकोगी नहीं, कोई खिलौने के लिए या किसी के लिए आप टोकोगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना बचपन एक खाली बोतल के साथ खेलने में लगाया। बहुत ही ऐसी कहानियाँ हैं आपके सामने, अगर कहने जाओ तो सालों साल लगेंगे। खैर ये छोटी सी एक किस्सा मैंने आपको बताया, पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें वो बहुत दिल को छूते हैं। और उनका जो पास्ट था, उनका बचपन था, या उन्होंने कैसे अपने आप को यहाँ तक पहुँचा है, उसमें जो भी जिद थी या जो भी स्ट्रगल था, वो शायद ही किसी फिल्म या किसी पुस्तक या किसी में लिखा होगा। पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है और हम उनको बहुत मिस करते हैं। धन्यवाद। मैम लेफ्ट हैंड, मैम थोड़ा सा आगे आ जाइए ना। मैम इधर, स्मिता जी विजुअल से मैम थोड़ा सा इधर। रोलिंग, खड़े रहो ना। इतना बड़ा म्यूजिकल ट्रिब्यूट स्मिता जी सेंटर। Please tell us about your whole making and rehearsing of the song which will be performed live today. Well, it's a beautiful song which is composed by Center Ji, and Nitin Ji is today the music composer. He's orchestrating the entire band and there are legends with us. And it's an honor to share the stage with these lovely singers. And it's a special tribute to Balasahan. And we've read so much about him, heard so much about him. And he was a visionary, and Smita Ji is doing this tribute. Dalat Ji is also there. It's an honor for me to be here and pay a special tribute through my music. I would like to know जी, so 2 लाइनें मेरे गाने में। पकड़ के तूने चलना सिखाया था, दहलीज़ ऊंची नहीं पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, दहलीज़ पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। Thank you. थैंक यू मैम इधर देखिए, कहाँ देखिए कैमरे में देखिए मैम, इस तरफ मैम। if you had any in that time, क्या memories हैं आपकी? I'm very fortunate। पहले तो बाला साहब का आज जन्मदिन है, उसके लिए वो मैं अपनी शुभकामनाएं जहाँ भी I'm very fortunate कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। उन्हीं के घर में गणेश चतुर्थी थी और हम सब गए थे, मैं सुलक्षणा दीदी और मेरे पिताजी। हमने वहाँ उनके साथ खाना खाया था। उनकी वाइफ और बाला साहब was so nice
इतना अच्छा लगा था। और वही किया मगर मुझे सब याद है, बाला साहब ने बहुत प्यार किया था और साथ में हमारे उन्होंने खाना खाया, हमने उनके साथ खाना खाया था। स्मिता ठाकुर जी का जो ये इनिशिएटिव है मुक्ति फाउंडेशन का, उसके लिए क्या करेंगे? मैं सोचती हूँ स्मिता जी ने बहुत अच्छा किया है और आज जो जन्मदिन पर भी उन्होंने हमें बुलाया, वेरी मच थैंकफुल टू स्मिता जी एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। Without being what would you like to say? I come here, I train here with Aishwarya, my brother, and just really happy to be here in this part of families. Thank you. Rohan? I think it's an absolute honor to be here and never had the good fortune of meeting Sir personally, but I think there's no better way to celebrate his birthday than a beautiful musical evening. Looking forward to it, absolutely. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. This way. रोड सबसे पहले मुझे बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि बाला साहब की 98th बर्थ एनिवर्सरी और स्मिता जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, ये काबिल तारीफ दो वजह से है। इसलिए नहीं कि स्मिता जी उनके परिवार की है, बल्कि स्मिता जी कुछ ऐसे कार्य करना चाहती हैं जो आने वाले समय तक आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। So I very strongly feel the initiative taken by Smita ji is praiseworthy and in true sense हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए और दिल से करनी चाहिए। यहाँ मैं ये भी बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि बाला साहब के साथ मेरा भी संबंध बहुत अच्छा रहा, बरसों से संबंध रहा। आई मीन दिस फिल्म इंडस्ट्री एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर धीरज कुमार तो ठीक है, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलने जाता था और बाला साहब ने मुझे कभी भी किसी बात के लिए निराश नहीं किया। जब भी मैंने उनसे कहा कि मेरा ये अच्छा कार्य है, एक अच्छा काम है, तो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर आगे बढ़कर मुझे हेल्प करने की उन्होंने कोशिश की और काम को करवाया भी। तो लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें रह जाती हैं। तो बाला साहब की जो याद है हम सबके दिलों में है, हम सबके दिलों में रहेगी, आने वाले समय तक रहेगी। मैं इतना कहूँगा कि लॉन्ग लिव बाला साहब ठाकरे, लॉन्ग लिव महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय। थैंक यू। कतार में आखिरी इंसान जो खड़ा है उसके बारे में बात है, which is very nice. And I want to also say that I mean it was very sad the day he died. I know it's his birthday का जन्मदिन है, हम आज मरीन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस इतना जन समूह शायद शास्त्री जी के बाद उनके फ्यूनरल प्रोसेशन में देखा गया था। इट वॉज ऑल बिकॉज जो प्यार उन्होंने लोगों से कमाया और जो लोगों की सेवा में, जो लोगों की भलाई के लिए जो बातें करते थे उसकी वजह से। Ayan, and with regards to Mukti Foundation, she wants you to stand. Yes. ये मेरा बेटा है अयान, ये भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जल्दी प्रवेश करेगी। गाना गाते हैं, लिखते हैं, मॉडलिंग करते हैं और अभी इनका एक गाना रिलीज होने वाला है 10th of Feb. He's releasing his first. What's the title of the song? It's called Gumshuda and it will be out on all streaming platforms, wherever, YouTube, all over. It's written by you. I think it's written by Aishwarya and me, and we composed it together. We're one team. It's sung by him. Knowing about Mukti Foundation, Bala Saheb Thakur's whether happened, I'm sure Yes. on that time or very young. Would you have any memories or any hearsay? You know, I've never seen her, I've never met her, but Aishwarya always tells me that Shivaji Park में जब सर जाते थे to talk to people, कोई नहीं खड़ा रहता था. First few months, महीनों तक कोई आया नहीं. तो हम लोग जब भी अपना म्यूजिक बनाते हैं तो he tells me कि साहब का सोचो, he had nobody standing in front of him. तो वो 10 लोगों के लिए भी वेट मत करो, आप अपने से चालू करो, देखिए कितने लोग जुड़ गए उनसे. Yes, he was an inspiration. And with regards to Mukti Foundation, I want to say that मैंने अपना सोशल वर्क सबसे पहले एड्स अवेयरनेस से शुरू किया था और उस वक्त स्मिता जी उनमें से थी
जो आगे आकर एड्स के बच्चों के मतलब एड्स से पीड़ित बच्चों का या जो एड्स से पीड़ित जो लेडीज एंड मतलब डॉक्टर और मर्द थे उनको सपोर्ट करती थी। और उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक फंक्शन किया था जिसमें शाहरुख खान was supposed to do that छैया छैया एक्ट। तो उस वक्त मैं डॉक्टर किलारा सुनील दत्त साहब हमारे प्रेसिडेंट थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो मुझे कहा गया कि आप जाइए, आपको शाहरुख को जाके समझाना है एड्स की बीमारी क्या है, ये सेंसिटाइज करना है उनको। तो उस वक्त शाहरुख वाज गोइंग टू परफॉर्म एंड बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो अनफॉर्चुनेटली उनके माँ बाप को एड्स था, जो पैदा हुआ तो वो भी एड्स का उस वक्त एड्स की बीमारी के लिए इलाज बहुत लंबा चौड़ा होता था। अब तो खैर बहुत ही सिंपल हो गया है और लोग बहुत साल जीते हैं HIV के साथ। तो उस वक्त फिर मैंने शाहरुख को समझा रही थी और वो इनका उन्होंने पूरा भव्य स्टेज बनाया था, बहुत बड़ा आयोजन किया था, जस्ट सो दैट पीपल कैन नो कि एड्स के बारे में क्या क्या मिथ्स हैं, मतलब जो गलत फहमियाँ हैं, जिसके जो डर फैलाया गया था और किस तरह से उसको लोगों को सेंसिटाइज करना था, इसलिए उन्होंने किया था। तो दिस इज़ वेयर आई सॉ फर्स्ट टाइम स्मिता जी एंड उनकी जो समाज सेवा है और समाज के प्रति जो भावना है वो आई थिंक बाला साहब से उन्होंने सीखा है। Thank you so much. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। महाराज माँ तुलसी विहारी विद्यापीठ वृंदावन उनके शुभ हाथों से तथा जीतू जी के हाथों से और सम्माननीय उदय सामंत जी, विद्यमान उद्योग मंत्री धीरज कुमार जी और स्मिता जी, आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से विमोचन किया जाए। जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस कार्यक्रम का जो औपचारिक विमोचन होने जा रहा है उसे हम संपन्न करेंगे और स्मिता जी से गुजारिश आगे की जो सूचना और प्रस्तावना है वे करेंगे। आप सभी का धन्यवाद यहाँ आज इतनी खूबसूरत शाम में शामिल हुए हैं। मैं सबके बाद में कुछ शब्द कहना चाहूँगी। सबसे पहले मैं परम पूज्य आदरणीय श्री श्री तुलसी जी महाराज जो हमारे परम पूज्य गुरु जी हैं उनको गुजारिश करना चाहूँगी कि कुछ हमारे